Good morning, students. In the last classes, we have discussed so many applications of linear equations in two variables. Now, we are in session number 4 of this particular topic. Now, in this particular topic, we'll be discussing problems based on speed, distance, and time. Students, this topic is very important topic. A very important topic. See, in this particular topic, we'll be discussing 3 types of questions. In these 3 types of questions, first of all, let's discuss the questions based on, in this particular topic, based on type 1. First type, that is the motion of boat. Motion of boat. Based on motion of boat and stream. So students, in this particular topic, this is a very interesting topic, and in this particular topic, the equations that will be formed, that equations will be equations reducible to linear. So to solve the equations, you should refer to the topic, that is equations reducible to linear. So motion of boat and stream. Let's see what do you mean by this motion of boat and stream. Before this, let's discuss the relation between speed, distance, and time. As we know that speed is equal to distance upon time. In most of the questions, we'll use the concept here, that is time is equal to distance upon speed. Time is equal to distance upon speed. First, let's discuss when the river is flowing in this direction. And I place a boat is moving in the same direction. So in this, if the speed of boat is x kilometers per hour, this is considered as speed in still water. And if the speed of stream is y kilometers per hour, when we say downstream, this condition is known as downstream. That means river and speed and boat are moving in same direction. So students, as we have learned, if an object is moving with a speed of 5 kilometers per hour and it is pushed in the same direction with a speed of 2 kilometers per hour, then the resultant speed of the object will be 5 plus 2, that is 7 kilometers per hour. So the same thing here also. The speed of boat is x kilometers per hour, speed of stream is y kilometers per hour. So speed of boat downstream will be x plus y kilometers per hour. Both the speeds will be added because the speed of stream, flow of stream, will support the speed of the boat. For example, we'll take an example here again. Suppose the river is flowing with a speed of 10 kilometers per hour. Water is flowing with the speed of 10 kilometers per hour. वाटर की स्पीड है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर और हमने ये पानी बह रहा है इस डायरेक्शन
इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने कागज की नाव बनाई और कागज की नाव बनाकर यहाँ पर रख दी, केप्ट हियर, केप्ट मतलब जो उसकी स्पीड थी वो थी 0, स्पीड इज 0 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हमने इसको रख के छोड़ दिया तब ये चलने लगेगी और ये इसकी स्पीड हो जाएगी क्या, 10 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 0 plus 10 because they are moving in the same direction. So in this case the speed of boat downstream is x plus y kilometers per hour because both are moving in the same direction. Now let's take second case, another case, condition number 2. Suppose the boat is moving in opposite direction. Suppose the boat is moving in opposite direction. Now in this case here, this is the direction of river or water is flowing in this direction, and a boatman rows a boat in the opposite direction. Suppose the speed of boat in still water is x kilometers per hour and the speed of river is y kilometers per hour. Same situation. Now in this case what will happen? The speed of river will oppose the speed of boat. Speed of river will oppose the speed of boat. इसका opposition करेगा, लेकिन बोट को तो आगे जाना है, तो speed of boat will always be greater than the speed of river. Speed of boat in still water, speed of boat in still water is always greater than the speed of river or speed of water. This situation when they are moving in opposite direction, इसको हम कहते हैं upstream. Upstream means river and boat are moving in exactly opposite directions. Exactly opposite directions. तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ बोट upstream will be equal to x minus y kilometers per hour. ठीक है, देखिए बच्चों मान लीजिए नदी में बाढ़ आई, और आप यदि प्रयास करते हैं, जो कि मैंने यहाँ कहा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रिवर. नदी में बाढ़ आ गई, आपने प्रयास किया कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएं. आपकी स्पीड है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. हैप्पी बर्थडे हो जाएगा. आपको आगे बढ़ने के लिए बोट की स्पीड हमेशा पानी की स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए. सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रिवर. So speed of boat upstream will be taken as x minus y kilometers per hour. So this is the basic concept which we are going to use in type 1, that is motion based on motion of boat and stream. So remember here students, speed of boat in downstream, the speed will be x plus y kilometers per hour, and upstream the speed will be taken as x minus y kilometers per hour. Now, and one more thing I'll tell you, a very interesting one, to frame the equations. With the help of that you can easily frame the equations. पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम। रितु कैन रो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 2 hours and return downstream in the same time. In 2 hours. Goes 4 kilometer upstream and returns downstream in 2 hours. (20 kilometers). Ritu can row 20 kilometers downstream, 20 kilometers downstream in 2 hours and 4 kilometers upstream in the same time. Find the speed of boat in still water and the speed of stream. So to solve the question, see here downstream, upstream. Let the speed of boat in still water be x kilometers per hour and speed of stream be y kilometers per hour. According to the condition that we have just discussed, speed डाउनस्ट्रीम क्या था बच्चों? पानी के साथ साथ बहना, तो इसमें प्लस होता है x प्लस y किलोमीटर्स पर आवर. स्पीड अपस्ट्रीम will be against the flow, speed of boat minus speed of stream, x minus y किलोमीटर्स पर आवर. तो ये इतना पार्ट कॉमन है जो कि हर एक क्वेश्चन में आपके आएगा. नाउ लेट्स सी कंडीशन नंबर 1. लेट्स फ्रेम द इक्वेशंस. कंडीशन नंबर 1, we are given the distance, we are given the time, speed we already have. So the relation that you have is speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. कंडीशन नंबर 1 में स्पीड डाउनस्ट्रीम, कंडीशन नंबर 1 है डाउनस्ट्रीम के लिए है कंडीशन नंबर 1. तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन में स्पीड क्या है? x प्लस y. डिस्टेंस कितना दिया है? 20. टाइम कितना दिया है? 2 hours. तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस y इज इक्वल टू 10. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन जो कि अपस्ट्रीम की कंडीशन है. अपस्ट्रीम, अगेन आई राइट द सेम रिलेशन. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए अपस्ट्रीम में स्पीड है आपकी x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर्स और टाइम 2 आवर्स, सेम टाइम तो 2 आवर्स। तो यहां से इक्वेशन मिली x minus y is equal to 2. Now you can solve these two equations and get the values of x and y. तो यहाँ पे adding 1 and 2, adding 1 and 2 plus y minus y cancel, 2x equal to 12, x equal to 6. Now put the value of x in equation number one. 6 plus y equal to 10. Y is equal to 6. 10 minus 6, that is 4. अब बच्चों जब हम आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के लिए x की वैल्यू आई 6, y की वैल्यू आ गई 4। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर लिखने के लिए आंसर इज, जो हमने अस्यूम किया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आंसर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x क्या आया था 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, that is 4 kilometers per hour. So this is the answer. This way you need to write the answer. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अपस्ट्रीम में माइनस होती है दोनों की स्पीड और डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस होती है। Let's take one more example of very important question. As I said that in this particular part, the equations that will be formed will be in the form of equations reducible to linear, not exactly linear. अभी इससे पहले जो इक्वेशन बनी थी वो तो एग्जैक्टली डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में थी, लेकिन हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमारी एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन इट विल बी इक्वेशन reducible to linear. Let's take example number 2. तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, a boat goes 30 kilometer upstream. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. A boat goes 30 किलोमीटर, आप लिख रहा हूं अपस्ट्रीम, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours, and it goes 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. 40 kilometers up and 55 kilometers down in 13 hours. Find the speed of stream and the speed of boat. Find the speed of stream and the speed of boat in still water. So let's solve. In this type of questions, देखिए 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम,
दोनों का टाइम है, जाना और आना, जाने और आने का टाइम मिलाकर दिया हुआ है 10 hours. So in this type of questions, first let's begin with the solution. Let the speed of boat in still water be x kilometers per hour and speed of stream be y kilometers per hour, so that speed of boat upstream will be x minus y. अप में माइनस होता है तो x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर. स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम will be x plus y kilometers per hour. Now it would become easier to solve this type of questions when we make a table. And to make a table, students, you might have heard a very important concept which has been arrived few years ago, that is GST. तो GST को याद रख के हम इसका टेबल बनाएंगे. तो GST की जगह हम लिखेंगे DST. DST याद रखिएगा. तो याद रखना आसान है. GST याद रखेंगे तो DST अपने आप आ जाएगा. तो उसी तरीके से हम GST की जगह हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे. कंडीशन नंबर 1 के लिए, दोनों कंडीशंस के लिए अलग अलग टेबल बनेगा. तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे DST. D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम. ये बनाया हमने टेबल. यहाँ पर 2 कॉलम बनाना है. एक में लिखेंगे अप, दूसरे में लिखते हैं डाउन, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टोटल टाइम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. हमें सिर्फ इसको टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना है. सिर्फ टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना है ताकि यहाँ से हमारा टाइम सेव हो जाएगा. इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम बिकॉज इन दैट केस यू नीड नॉट राइट द होल स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इक्वेशन बनाना भी आसान होगा बच्चों. तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है अपस्ट्रीम. पहली कंडीशन देखिए, डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और जो टोटल टाइम है वो दिया हुआ है 10 आवर्स का. अब यहाँ पे देखिए स्पीड अपस्ट्रीम जो कि हमने पहले ही लिखा हुआ है, दैट इज x माइनस वाई. स्पीड डाउनस्ट्रीम ये भी हमने पहले ही लिखा हुआ है, वो बन गया x प्लस वाई. अब देखिए यहाँ पर DST का फायदा क्या है. D अपॉन S इज इक्वल टू T. D अपॉन S इज इक्वल टू T. तो यहाँ पर D अपॉन S करते हैं तो टाइम आएगा 30 अपॉन x माइनस वाई. यहाँ पे टाइम आएगा 44 अपॉन x प्लस वाई. 44 अपॉन x प्लस वाई. और टोटल टाइम दिया हुआ है बच्चों 10 आवर्स. तो इक्वेशन बनी 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने बना दी इक्वेशन नंबर 1. अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाना है. सेम सिचुएशन, सिमिलर टेबल. कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 2 में है 40 अप 54 डाउन 55 डाउन. 40 अप 55 डाउन इन 13 आवर्स. 40 अप 55 डाउन इन 13 आवर्स. तो ये कंडीशन नंबर 2 है. फिर से हमें यही टेबल बनाएंगे बच्चों. DST याद रखिएगा. D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम. ये टेबल बनेगा और यहाँ पर इसके साथ 2 कॉलम बनना है.
एक में लिखिएगा अप, दूसरे में लिखेंगे डाउन, तीसरे में लिखा टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ये यहाँ से डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। टोटल टाइम बच्चों ऑलरेडी दिया हुआ है 13 आवर्स, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको 40 किलोमीटर्स अप में मैंने लिखा 40, 55 किलोमीटर्स डाउन तो 55 डाउन। स्पीड अप में हमने ली थी x माइनस वाई, डाउन में स्पीड हमने ली थी x प्लस वाई। टाइम इज इक्वल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो 40 अपॉन x माइनस वाई, 55 अपॉन x प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनी 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब ये जो दो इक्वेशंस बनी है, ये दोनों इक्वेशंस आप ध्यान से देखिए, these equations are not actually linear but we need to convert them in the form of linear equations by putting 1 upon x plus y is equal to u and 1 upon x minus y is equal to v. Then we will be solving the two equations by any of the three methods that we have discussed. तो यहाँ पर देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम आगे अज्यूम करेंगे इक्वेशंस को, पहले रिड्यूस करते हैं लीनियर के फॉर्म में। तो ये हमने इसके लिए हम इक्वेशंस को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u अज्यूम करते हैं और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v अज्यूम करेंगे। तो लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू u, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो यहाँ से बच्चों ये है v, ये है u। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनी, इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगी 30v प्लस 44u इज इक्वल टू 10। 30v प्लस 44u इज इक्वल टू 10। और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी 40v प्लस 55u इज इक्वल टू 13। अब ये दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए इसका भी एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। इससे पहले हमने जस्ट ये डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उसके लिए भी एक आसान तरीका है। देखिए मान लीजिए u को एलिमिनेट करते हैं, u को एलिमिनेट करना है। तो 44 देखिए ये क्या है 11 इंटू 4 और 55 आपका है 11 इंटू 5, ठीक है। तो 11 तो दोनों में कॉमन है ऑलरेडी। अब बचा हमारे पास 4 और 5। सो व्हाट वी डू, वी विल मल्टीप्लाई, इंटरचेंज कर दो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो देखिए 44 इंटू 5 इज 220, 55 इंटू 4 इज अगेन 220। देखिए बराबर आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सी 5 इंटू 30 150v प्लस 220u इक्वल टू 50, 160v प्लस 220u इज इक्वल टू 52। देखिए कोफिशिएंट्स बराबर आ गए हैं यहाँ पर हमारे पास। अब कोफिशिएंट्स जब बराबर है और सेम साइन होता है तो आपको क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली साइन चेंज होगा। यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। प्लस 220 माइनस 220 हो गया कैंसिल। 150 माइनस 160 दैट इज माइनस 10v इक्वल टू 50 माइनस 52 माइनस 2। तो v इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v, put the value of v in equation number 1. equation 1 था आपका बच्चों 30v 30 into 1 by 5 plus 44u is equal to 10. 5 1s are 5 6 are 6 इधर ट्रांसपोज करो,
44u is equal to 10 minus 6. 44u is equal to 4. So u is equal to 4 by 44. So that is 1 upon 11. 4 ones are 4 11 times. तो हमें मिला u is equal to 1 upon 11, v is equal to 1 upon 5. जैसा कि बच्चों इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर में डिस्कस किया था कि यहाँ पर u और v कैलकुलेट करने से सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम कंपेयर करेंगे फिर से 1 upon x plus y is equal to 1 upon 11 and 1 upon x minus y is equal to 1 upon 5. तो यहाँ से मिला x plus y is equal to 11, x minus y is equal to 5. ये बनी हमारी दो इक्वेशंस और आ गई हमारे पास। Now again the coefficients are same. So equation 3 elimination method फिर से लगा रहे हैं। Equation 3 plus equation 4, x plus y is equal to 11, x minus y equal to 5, plus y minus y cancel, 2x equal to 16, x is equal to 16 upon 2, 8, x की वैल्यू आ गई 8. Now put the value of x in equation number 3. Put the value of x in equation 3. थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं 8 plus y is equal to 11, y is equal to 11 minus 8, that is 3. तो हमारा आंसर हुआ x हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था? स्पीड ऑफ बोट किसमें? इन स्टिल वाटर is 8 kilometers per hour and speed of stream is y kilometers per hour. So this is the answer. Now see again a very simple situation. बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है इस पूरे क्वेश्चन में वो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अप में स्पीड माइनस होती है इसलिए स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर लेंगे, और डाउन में स्पीड प्लस होती है इसलिए स्पीड हम x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर लेंगे। डाउन प्लस अप माइनस, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक DST का कॉन्सेप्ट DST याद रखिएगा और टेबल बनाइए, इक्वेशन बहुत आसानी से बनेगी। Then second type of question, second variety of question, type 2. You can say type 2 based on speed, distance and time. मान लीजिए कि मुझे सपोज आपको 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, 300 किलोमीटर्स का सफ़र तय करना है। वो 300 किलोमीटर में कुछ दूरी आप एक बार बस से ट्रैवल करते हैं, दूसरी बार आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। कंडीशन नंबर 2 में उल्टा हो जाता है, कुछ डिस्टेंस हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और बचा हुआ डिस्टेंस हम बस से ट्रैवल करते हैं, और दोनों कंडीशन में हमें टाइम दिया हुआ है, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस फाइंड करना है। सो विल टेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल नाउ, दैट इज अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERT, रूही ट्रैवल्स। एग्जाम्पल नंबर 3, रूही ट्रैवल्स। ये NCERT का ही क्वेश्चन है बच्चों, और इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था दैट इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT। सो रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर। रूही ट्रैवल्स में सिर्फ टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन है रूही ट्रैवल्स टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, partly by train and partly by bus, partly by train and partly by bus, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours. She takes
she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train, if she travels 60 kilometer by train and rest by bus, she takes 10 minutes longer. She takes 10 minutes longer if she travels 100 kilometers by train, 100 kilometers by train and rest by bus. Find the speed of train and bus. Solution. Again we follow the same concept of DST here also, but before that assume कर लें, let the speed of train be x kilometers per hour and speed of bus be y kilometers per hour. आप देखिएगा कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 में। कंडीशन 1 वही सिमिलर टेबल बनाना है बच्चों आपको, DST, यहां पे मैंने लिखा ट्रेन, बस और टोटल टाइम। अब यहां पे देखिएगा फर्स्ट कंडीशन में 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चले, रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कितना होगा 300 माइनस 60, 240 किलोमीटर बाय बस एंड स्पीड इज x y, टोटल टाइम 4 hours दिया हुआ। टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, 60 by x टाइम, 240 by y टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय बस। तो यहां से जो हमारी इक्वेशन बनी वो है 60 by x प्लस 240 by y is equal to 4। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली कंडीशन नंबर 2, अगेन द सेम टेबल, DST, ट्रेन, बस और टोटल टाइम। डिस्टेंस देखिए, अब ट्रेन का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर, बस का रिमेनिंग 300 माइनस 100, 200 किलोमीटर बाय बस, स्पीड है x एंड y। यहाँ पे दिया है 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पहले 4 घंटे लगे थे, अब 10 मिनट ज्यादा लगे, मतलब टाइम हो गया 4 hours 10 minutes। इसको अपन लिख सकते हैं 4 10 by 60 hours, 0 0 कैंसिल हो गया, मीन्स इट इज 25 by 6 hours। यहाँ पे टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन x, 200 अपॉन y। यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी
100 upon x plus 200 upon y equal to 25 upon 6. Now in these equations, again these are not linear, so we assume let 1 upon x is equal to u, 1 upon y is equal to v. जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगी 60u प्लस 240v इक्वल टू 4. अब यहां पर सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6. तो जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन को अपन पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं. लेट्स डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 4, मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 6. इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया, 15u प्लस 60v इक्वल टू 1. इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना, 600u plus 1200v equal to 25. This was your equation number 1. This is your equation number 2. Now let's solve these equations by elimination method. Elimination के लिए देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 1200 है. इक्वेशन फर्स्ट को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 1200 मिल जाए? 20. तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. गुड. तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 20, 300u plus 1200v equal to 20. 600u plus 1200v is equal to 25. अब क्या करना है? यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन. सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस. 1200 कैंसिल. 300 माइनस 600 minus 300u माइनस 300u. 20 माइनस 25 minus 5. minus 5. So u is equal to minus 5 upon minus 300, that is 1 upon 60. u की वैल्यू आ गई बच्चों 1 upon 60. Now let's put the value of u in equation number 1. Let's put the value of u in equation number 1. Put the value of u in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 15u plus 60v is equal to 1. 15u plus 60v equal to 1. u की वैल्यू हमें मिली 1/60. तो यहाँ पे पुट करते हैं 15 into 1 upon 60 plus 60v equal to 1. 15 ones are 15 fours are. ये 1/4, अकेला 4 इधर ट्रांसपोज नहीं होगा, ये 1/4 पूरा इधर ट्रांसपोज होगा. तो यहाँ से मिलेगा 60v is equal to 1 minus 1/4 equal to 3 upon 4. तो v is equal to 3 upon 4 into 1 upon 60. 3 20 times, तो v is equal to 1 upon 80. बच्चों यहाँ पे फिर से अभी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें x और y फाइंड करना है. तो अब कंपेयर करते हैं. u इज इक्वल टू मिला था 1 upon 60, v इज इक्वल टू मिला 1 upon 80. मतलब 1 upon x इक्वल टू 1 upon 60, 1 upon y इक्वल टू 1 upon 80. तो यहाँ से आपको
x और y की वैल्यू मिलेगी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स विल गेट x इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 80। x और y की वैल्यूज आ गई। अब आंसर लिखना है आपको। x आपने क्या अज्यूम किया था? ट्रेन की स्पीड। y आपने क्या अज्यूम किया था? बस की स्पीड। आंसर इज स्पीड ऑफ ट्रेन is 60 kilometer per hour and speed of bus is 80 kilometers per hour. So this type of questions are also part of this topic, that is based on distance, speed and time. We'll be discussing one more very important type of question based on the same concept, that is speed, distance and time. देखिए बच्चों, मान लीजिए दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। उस कंडीशन में आपको जब दो कार्स दो अलग अलग जगह से सेम टाइम पर चल रही हैं और टाइम दिया हुआ है व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगेन you need to find the speed of cars A and car B. So we'll solve this type of questions in type 3. The question is, places A and B are 100 kilometers apart. Places A and B are 100 kilometers apart. Places A and B. Example number 4. Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A. One car starts from A and another from B at the same time. If they move with different speeds, if they move in, if they travel towards each other, they meet in 1 hour, and if they move in same direction, if they move in same direction, if they move in same direction, they meet in 5 hours, and if they move in opposite directions, they meet in 1 hour. Find their speeds. दो कंडीशन है बच्चों, दोनों को देखिएगा बहुत ध्यान से। प्लेसेस, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए be x kilometers per hour and that of car B be y kilometers per hour. Now let's see condition number 1. ऐसी क्वेश्चन में बच्चों फिगर बना लीजिएगा तो पोजीशन क्लियर हो जाती है। A and B are 100 kilometers apart. A भी दिया हुआ है 100 kilometers. फर्स्ट कंडीशन, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार यहां से चल रही है, दूसरी कार यहां से चल रही है, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन।
अब ए को बी को ओवरटेक करना है, ए को ओवरटेक करना है, तो ऑब्वियसली जब ए को ओवरटेक करना है तो ए की स्पीड ज़्यादा होगी, तो दोनों कार्स एक टाइम पर जाकर के सी पर मिल जाती हैं। दे मीट एट द पॉइंट सी। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है दोनों के लिए 5 आवर्स। कार ए ने ए टू सी डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 आवर्स में, कार बी ने बी टू सी डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 आवर्स में। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, स्पीड इसकी है x किलोमीटर्स पर आवर, टाइम इसका है 5 आवर्स, मतलब 5x हो गया। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? कार ए ने A to C डिस्टेंस ट्रैवल किया है, so this is AC. So we get AC is equal to 5x. Now distance traveled by car B, कार B की स्पीड थी y किलोमीटर्स पर आवर, टाइम सेम है 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो इसका डिस्टेंस हो गया 5y। और कार B ने ट्रैवल किया कहाँ से कहाँ तक? B से C तक, इसलिए ये क्या हो गया? BC इज इक्वल टू 5y। अब आप देखिए ज्योमेट्रिकली रिलेशन बिटवीन AB, BC एंड AC, AB, BC एंड AC, तो ये होता है AB प्लस BC इज इक्वल टू होगा AC, AB प्लस BC इज इक्वल टू होगा AC। AB आपका कितना है? 100 किलोमीटर, BC आपका कितना है? 5y, और AC आपका कितना है? AC आपका है 5x। तो यहाँ से इक्वेशन बनी 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 देखिएगा, कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन, अगेन वी ड्रॉ लाइक दिस A B, पॉइंट A पॉइंट B, इसमें भी AB का डिस्टेंस तो सेम है 100 किलोमीटर्स। नाउ दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक कार यहाँ से जा रही है, दूसरी कार यहाँ से जा रही है। दे मीट एट द पॉइंट C हियर एंड दे आर ट्रैवलिंग, टाइम जो उनका दोनों का दिया हुआ है वो है 1 आवर, 1 घंटे के लिए ट्रैवल किया। अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A, अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड थी x, टाइम था 1, तो ये हो गया x, और ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? AC, x इज इक्वल टू हो गया AC। ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार B, स्पीड y, टाइम 1 मीन्स y, और ये डिस्टेंस कौन सा है? BC। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग यदि हम रिलेशन देखते हैं तो हमें मिलेगा AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, AC प्लस BC इक्वल टू AB। तो इक्वेशन बनी x प्लस y इक्वल टू 100। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज निकालना है एंड द आंसर will be, let's solve the two equations, add the two equations, add the two, coefficients are already equal, so add the two equations, x plus y is equal to 100, second equation थी x plus y is equal to 100, first equation x minus y is equal to 20, let's add, simple addition करना है, plus y minus y cancel, 2x equal to 120, x is equal to 120 upon 2 means 60. Now put the value of x in equation number 2. Put the value of x in equation number 2. जो कि थी x plus y, 60 plus y equal to 100, y is equal to
100 minus 60, y is equal to 40. x आया था 60, y आई थी 40. जब फाइनली आप आंसर लिखेंगे, आंसर द स्पीड ऑफ कार A is equal to x, that is 60 kilometer per hour, and speed of car B equal to y kilometers per hour, that is 40 kilometers per hour. So this type of questions, this is definitely a question from NCERT only, and with the help of this you can definitely solve the questions based on speed, distance and time which are given. Some of the questions are given in NCERT also. And watching this video, watch the video, subscribe the channel on YouTube, Maths by Pradeep Burde. Your comments and views are very important. For any doubt, WhatsApp on my number 99814 99527. Thank you.